ओटीटी सोशल मीडिया की गाइडलाइंस जारी की गई है और रविशंकर प्रसाद ने इस बाबत क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जब प्रकाश जी ने यहाँ फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as the intermediary, then became the social media, some became publishers overnight। ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अराउंड 11 December 2018 in the Pranjwala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट। Our secretary, Mr. Ajay Sani, had filed an affidavit in the court to be doing by this year beginning itself। राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, ये भी तो सोशल मीडिया पर। And all the members of parliament urged me to take action, and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline। और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020, जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी। Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the High Courts as well to take action in this। हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया। We prepared a draft on 24 December 2018 where we received 171 comments। We put those comments in public domain and we had 80 counter comments too। Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them। अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं, बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है। देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स number for a significant social media intermediary very soon। Who will be those? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days। That is very clear। Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made। This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else। It's very clear। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules। Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर
who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का. ये खुराफात हुई, but who was the creator? Who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं. कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है. कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, जिन्होंने ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. उन्होंने कहा कि गलत इस्तेमाल नहीं होने दे सकते और इसी के चलते अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. इसी के साथ साथ सोशल मीडिया, ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स और न्यूज पोर्टल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है. रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गलत इस्तेमाल नहीं होने दे सकते सोशल मीडिया का, और इस दौरान उन्होंने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है. तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हम नहीं करने दे सकते.